Last topic. So whatever sums I am going to do are all a revision of whatever we have done till date. Okay, nothing new. All a repetition of whatever we have done. Four sums, five sums. All of you take sum number 25. Take sum number 25. अरे सर 25 आपने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया हो क्या वो सब? मार्क किया नहीं दूसरी बार करने के लिए मार्क किया 25 किया हो नहीं किया हो सब दिया है मैंने जो इम्पोर्टेंट वाला 25 हो गया अपना नहीं हुआ आई रिमेम्बर नहीं हुआ सम नंबर 25 चलो फटाफट करो फटाफट वाइंड अप करते हैं एक सब क्वाइट ना guys silence now Priya Gandhi 25th sum. Quiet now. Today's sums all are very important revision sort of sums. See 25th. Suman Limited issued Karu discuss. Suman Limited issued equity shares of 10 each at a premium of rupees 3 per share. So how is the issue being made? At premium 10 plus 3 13 रुपए में issue हो रहा है. What is the breakup? Breakup is also given to you. There are 4 parts: 3, 5, 2.5 and 2.5. And 5 is including premium. So this is 3 plus 2. 2 plus 3. This is 2 towards capital and 3 towards premium. Application, allotment, first call and second call. बराबर है? 4 breakup. One shareholder, Mr. Ashok, failed to pay the allotment money and first call money on 200 shares. Directors forfeited his shares after first call. Please underline that part, after first call. While another shareholder, Mr. Atul, failed to pay first call and final call money on 100 shares, and his shares were forfeited after final call. Underline that, after final call. Journal entries, past journal entries for 4 features of shares of Mr. Ashok and Mr. Atul. Mr. Ashok and Mr. Atul, दोनों का कौन सा एंट्री करना है? सिर्फ आपको 4 फीचर का एंट्री करना है, बट दोनों का 4 फीचर अलग अलग स्टेज पे हो रहा है. ये समझ में आया आपको? मिस्टर अशोक का 4 फीचर आई थिंक हो रहा है आफ्टर फर्स्ट कॉल, एंड मिस्टर अतुल का 4 फीचर हो रहा है आफ्टर फाइनल कॉल. कर सकते हो ये एंट्री खुद से? ओनली 4 फीचर एंट्री. चलो ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई, कम ऑन. प्रीमियम के साथ है, तो प्रीमियम का भी रूल अप्लाई करने का आपको. Once received should not be debited, not received. पहले वाले ने नहीं भरा है ना अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकंड वाले ने भरा है. पहले वाले में डेबिट होएगा, सेकंड वाले में नहीं होगा. कम ऑन, दिमाग लगाओ सब लोग. 2 एंट्रीज आएंगी सिर्फ, दोनों 4 फीचर की एंट्रीज है. 2 एंट्री, 1 फॉर अशोक, 1 फॉर अतुल. यू कैन ऑल्सो कंबाइन बोथ द एंट्रीज. दोनों को कंबाइन करके सिंगल एंट्री भी कर सकते हो तो भी चलेगा. You can combine both into one single entry, वो भी चलेगा. या
2.5 की raise कर सकते हैं। यस करेक्ट, डेबिट कर, रेज नहीं डेबिट, हो चुका है 7.5. आफ्टर फर्स्ट कॉल यू विल मल्टीप्लाई योर कैपिटल विद 7.5. ओके, better pass two entries, two different entries for forfeiture because the stages are different. अशोक का अलग करो, अतुल का अलग करो. फोरफीट किया है, सिर्फ रीइश्यू ट्रांसफर, रीइश्यू भी नहीं, ट्रांसफर भी नहीं, सिर्फ दो ही एंट्री, एक अशोक का एक अतुल का, दोनों फोरफीचर. Last time also you did that. That's wrong. You have to do transfer entry after reissue, not before that. Why? You know na? Reissue के वक्त you need na some loss. So forfeiture should be there. Just two entries. One for Ashok and one for Atul. Okay, just two entries. अशोक का कितना शेयर है? आई थिंक 200 shares. So tell me, what will you multiply your capital with for Mr. Ashok? 7.5. All of you got that? Why 7.5? 3 plus 2 plus 2.5. The stage of cancellation is after first call. So 7.5 से capital बढ़ा था, तो 7.5 से घटाया. So this is 1500. What is the rule for premium? Once received should not be debited, not received. What did Mr. Ashok not pay? Mr. Ashok ने क्या नहीं पे किया? First call and allotment, right? Allotment and first call दोनों पे नहीं किया, और अपना प्रीमियम किसके साथ पड़ा हुआ था? अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया तो प्रीमियम भी पे नहीं किया, प्रीमियम नहीं पे किया. नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. सो 200 into 3, that is 600, right? Then calls in arrears, चाहे कॉल इन अरियर चाहे शेयर फॉरफीचर, दोनों आप could you zoom into the board? दोनों लिख सकते हो. ऑर्डर डजंट मैटर. Is this clear? Better now? Yeah, thank you. चलो ना, अभी तुम्हारा कॉल इन अरियर्स या शेयर फॉरफीचर, जो अमाउंट पहले लिखना है लिख सकते हो. कॉल इन अरियर में मतलब क्या? जो पैसा उसने नहीं भरा, जो पैसा उसने नहीं भरा. क्या नहीं भरा भाई ने? अलॉटमेंट का 5 और फर्स्ट कॉल का 2.5. अलॉटमेंट का पूरा 5 लेने का. कैपिटल प्रीमियम कोई मैटर नहीं करता. कॉल इन अरियर मतलब जो भी पैसा नहीं भरा. कॉल इन अरियर में कोई भेदभाव नहीं है कि कैपिटल की तरफ नहीं भरा, प्रीमियम की तरफ नहीं भरा. जो भी नहीं भरा सबका सब इज कॉल्ड एज कॉल इन अरियर. सो 5 plus 2.5 is how much? 7.5 rupees भाई ने नहीं भरा. तो 7.5 into 200, that is how much? 1500. And how much will be in forfeiture automatically? 600. वेरीफाई भी कर सकते हो उसने क्या भरा है, सिर्फ एप्लीकेशन. तो 200 into 3, ओनली एप्लीकेशन भरा था, कैपिटल की तरफ हड़पा हुआ पैसा. Got that? This was for Mr. Ashok. What about Mr. Atul? अतुल का भी सेम एंट्री आएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम टू कॉल इन अरियर. हाँ हाँ बापा, अभी
इधर कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा पहले तो 10, क्योंकि यू आर कैंसिलिंग इट एट द एंड, फुल्ली कॉल्ड अप. सो 100 into 10 दैट शुड बी 1000. 1000 से क्रेडिट किया, 1000 से डेबिट करना है. वुड यू डेबिट प्रीमियम? वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड. तो यहाँ पे भाई ने अलॉटमेंट पे किया है तो प्रीमियम भी पे किया है, तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज नील, राइट? टू कॉल इन अरियर, what he did not pay, Mr. Atul, read. First and final call. So basically 2.5 and 2.5. That's how much? 5 rupees. So 100 into 5. That's 500. And how much would be 4 feature? 500. 4 feature में कौन सा अमाउंट रहता है? The money received towards capital. Capital का क्या भरा? 3 and 2. So 100 into 5. What about premium? उसने premium भरा है? भरा है? But would we take premium in 4 feature account? No. Why? Already credited in the third entry and amount received in the fourth entry. Already lying with the company. Actually company ने भाई से 3 plus 2 plus 3 8 रुपया हड़पा है, but 3 रुपया प्रीमियम में 5 4 फीचर. समझ आई? Is this clear? आया खुद से घर वाले? All of you, Kashish, Tanya. Next one, come to sum number 27. Sum number 27. No, only 4 feature. 27 sum. Subhash Limited issued equity shares of 10 each at 10% discount to the public. Issue was at discount, 1 rupees discount, right? So can you tell me the breakup? What is the breakup? 10 minus 1. 3 1 2 2. देखो पढ़ो उधर. 3 on application, 2 on allotment, 2 on first call, and balance 2 on final call. So this is application, allotment, first call, second call. What should be the total? 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 2, 9. 9 आ रहा है, perfect. डिस्काउंट किसके साथ पड़ा होता है? कुछ नहीं दिया है तो. So this is 3 minus 1. 3 towards capital and 1 discount कंपनी अपने जेब से डालेगा. बराबर है? Neeta was allotted 300 equity shares, paid only application money, and her shares were forfeited after first call. उसने सिर्फ एप्लीकेशन भरा था. उसने सिर्फ एप्लीकेशन भरा था, फिर भी अलॉटमेंट के बाद कैंसिल नहीं किया. कब कैंसिल किया? फर्स्ट कॉल. तो क्या क्या नहीं भरा उसने? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं भरा. एंड संजय was allotted 400 equity shares, paid application and allotment money only, and his shares were forfeited after final call. संजय के भी शेयर forfeit हो रहे हैं. कब हो रहे हैं? आफ्टर फाइनल कॉल. आफ्टर फाइनल कॉल मतलब एट दी एंड. और उसने क्या नहीं भरा? संजय ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा. तो ही पेड एप्लीकेशन एंड ही पेड अलॉटमेंट. कैन यू सी दैट? दिया हुआ है वहां पे. और आपको क्या करनी है? दोनों की सिर्फ 4 फीचर एंट्री करनी है. अभी 4 फीचर एंट्री विद डिस्काउंट. याद है आपको? लास्ट लेक्चर किया हमने. डिस्काउंट का क्या रूल होता है? 4 फीचर का कुछ रूल होता है? हर बार क्रेडिट होता ही है. मतलब इन 4 फीचर एंट्री यू विल ऑलवेज क्रेडिट द डिस्काउंट. व्हाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? जो देखो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है? लॉस, एक्सपेंस. तो जो शेयर्स अगर कंपनी कैंसिल कर रही है तो उसका डिस्काउंट का लॉस कंपनी क्यों भुगतेगी? आर यू गेटिंग दैट? जो शेयर्स ही आप कैंसिल कर रहे हो तो उसका लॉस कंपनी क्यों बेयर करेगी? उसको भी क्या कर देगी? क्रेडिट. लॉस को नलिफाई कर देगी, डिस्काउंट को नलिफाई कर देने का. तो 4 फीचर एंट्री में डिस्काउंट क्या होगा? क्रेडिट की डेबिट. क्रेडिट कम करना ही है. उसमें कोई थॉट, कोई रूल है ही नहीं. डिस्काउंट अगर ओरिजिनल सम में है तो 4 फीचर एंट्री में डिस्काउंट क्रेडिट होगा और होगा ही. प्रीमियम के लिए रूल है, वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिट. डिस्काउंट तो भाई हर बार क्रेडिट करने का और करने का. तो फिर शेयर कैपिटल को उसमें फेस वैल्यू. में 3 गिनने का. फेस वैल्यू.
अलॉटमेंट की बात कर रहे हो तो 3 + 3 6 से मल्टीप्लाई होगा कैपिटल. Not with 5. नहीं, नॉट विथ 5. कैपिटल इज 6. 3 + 3 6. अगर आप फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हो तो 3 + 3 6 + 2 8. और फाइनल कॉल की बात कर रहे हो तो 10. करो, ट्राई करो. कम ऑन, ट्राई द 4 फीचर एंट्री. 1 फॉर संजय, 1 फॉर नीता. पहले नीता फिर संजय. So question number क्वेश्चन नंबर 27. डिस्काउंट समझा. डिस्काउंट हर बार 4 फीचर में क्रेडिट होगा होगा और होगा ही. उसका एंट्री टू डिस्काउंट. टू डिस्काउंट. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर. भाई मैं पूछ रहा हूँ. डिस्काउंट 1 रुपया. Six. અહીંયા કરે તો into 6. અહીંયા કરે તો into 8. એપ્લિકેશન ભર્યું છે બરાબર. કેન્સલ અહીંયા થાય છે આફ્ટર ફર્સ્ટ. 8. सर तो अगर उसका अलॉटमेंट करा है तो फिर डिस्काउंट है. डिस्काउंट प्रीमियम जैसा नहीं है. डिस्काउंट तो लॉस है. वो तो करना ही है. करना है. से फॉर एग्जाम्पल तुम लोग 10 जन ने एडमिशन लिया, ठीक है. तुम सबको मैंने डिस्काउंट दिया फीस में. मेरा फीस सपोज 16,000 है. तुम 10 जन आए तो मैंने तुमको 15,000 में एडमिशन दिया. तो सबका 1,000 लॉस हुआ मेरा. बराबर है. अभी उसमें से एक एडमिशन कैंसिल हो गया. 10 जन ने एडमिशन लिया था. 10 जन ने एडमिशन लिया था. फीस था 16,000. मैंने अलाउ किया कितना 15 भरो. तो 10 जन के हिसाब से मेरा 10,000 का लॉस हुआ डिस्काउंट. उसमें से एक एडमिशन चला गया वापस. तो क्या उसका लॉस में बेयर करेगा. तो मेरा लॉस कितना गिना जाएगा 9. ये यहाँ पे फंडा है. सबका डिस्काउंट तुमने थर्ड एंट्री में डेबिट कर दिया है. फिर 1-2 शेयर होल्डर ने पैसा, उनका डिस्काउंट कंपनी क्यों लॉस में रख के रखेगी. वहां पे डेबिट करके क्यों रखेगी. क्रेडिट कर देगी, नलीफाई कर देगी. तो जो शेयर्स आप कैंसिल करते हो उसका डिस्काउंट भी क्या होना चाहिए. रिवर्स क्रेडिट ही होना चाहिए. नलीफाई होना चाहिए. देखो एंट्री कैसे दिखेगी, ध्यान से देखो. व्हाट विल बी द एंट्री. एकदम करेक्ट. पहले आएगा, किसका कर रहे हैं हम लोग. पहले नीता की, अशोक, संजय, नीता. पहले नीता का करते हैं 4 फीचर. एंट्री क्या होगी. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट. कॉल इन अरियर टू शेयर 4 फीचर टू व्हाट. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर. ओके. लास्ट लेक्चर एक ही प्रॉब्लम में मैंने किया था, एकदम एंड वाला प्रॉब्लम था. कैपिटल टू CIA टू शेयर 4 फीचर टू डिस्काउंट. नाउ हाउ मेनी शेयर्स ऑफ नीता आर वी कैंसिलिंग. ध्यान से देखो यहाँ पे. व्हाट स्टेज आर वी कैंसिलिंग. आफ्टर फर्स्ट कॉल. सो व्हाट विल मल्टीप्लाई योर कैपिटल विथ. So that's 2,400. Is that right? To calls in arrears, what Neeta did not pay. ये 2 रुपया और ये 2 रुपया. विथ प्रीमियम होता तो टोटल लेने का. विथ प्रीमियम. विदाउट डिस्काउंट है तो विदाउट डिस्काउंट. 2 रुपया भरना था इधर. इधर भी 2 भरना था. 4 रुपया भरना था, वो उसने नहीं भरा. तो 300 into 4 ये हो गया 1,200 रुपया CI. शेयर 4 फीचर क्या भरा उसने. ये 3 भरा बस. एप्लीकेशन ही भरा था. तो 300 into 3 कितना होता है 900. और डिस्काउंट हर बार क्रेडिट करना ही है. क्यों करना है. क्योंकि भाई कैंसिल कर रहे हो शेयर तो लॉस क्यों भुगतोगे. जो डेबिट लॉस है उसको क्रेडिट करो, नलीफाई कर दो. कितने शेयर्स थे तुम्हारे पास. कितने 300 थे ना इसके. तो 300 into 1. ये टोटल चेक कर लेने का. इट शुड बी 24. बोल. तो આપણે જે કેપિટલ પ્લસ જે ઓલું ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે બરાબર. એમાં આપણે પ્રીમિયમ નો અમાઉન્ટ આપણે એડ ના ના કરે. કરે. જે કેપિટલ આપણે
हाँ कैपिटल, इधर उधर भी सेम लॉजिक, उधर प्रीमियम नहीं लेने का, इधर डिस्काउंट नहीं लेने का, फेस वैल्यू कॉल्ड अप कैपिटल में कॉल्ड अप है। सॉर्टेड। दूसरा वाला ट्राई करो अभी, नीता के बाद कौन था उधर, संजय। संजय का देखो क्या होगा आपका एंट्री, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल, संजय का कैपिटल कितना शेयर है संजय का, आई थिंक 400, कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होता है 4000 टू कॉल इन अरियर। संजय ने क्या नहीं भरा, आई थिंक उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा, तो 2 और 2 होता है 4, तो 400 इंटू 4, ये कॉल इन अरियर 1600 एसेट था, उसको नलिफाई किया, अभी वो पैसा आने वाला नहीं है। फोर फीचर जो भरा था वो हमने हड़प लिया, उसने क्या भरा था, ये 3 भरा था एप्लीकेशन का और ये 2 भरा, नॉट 3 बट 2, पेड ओनली 2 ना, डिस्काउंट था 1 रुपया, तो कंपनी दे रही है, गेटिंग दैट। प्रीमियम के वक्त भी कैपिटल की तरफ भरा हुआ पैसा, डिस्काउंट के वक्त भी कैपिटल की तरफ भरा हुआ पैसा। कैपिटल की तरफ कितना भरा पैसा, 3 इधर 2 इधर, तो 5 रुपया भरा है, तो फोर फीचर में आएगा 400 इंटू 5 दैट इज 2000, एंड डिस्काउंट कितना आएगा आपका 1 रुपी, ये तो करना ही है, क्रेडिट करना ही है, तो 400 इंटू 1 दैट इज 400। इज दिस क्लियर? That's your entry. आया, ये आया। Next one. अभी I want you all to take sum number 30, 3030. All of you take sum number 30. Try sum number 30. Come on. Hello. Happy Dashara, madam. Yes, yes. क्यों मैडम, आज क्या है उसका? तो हमने आप लोग को बोला था ना, आपको दूसरा बैच में कर दो उसको सेंड, 10:30 वाले में, 11:45। हाँ चलेगा ना? मैं आज हो सके तो प्लीज ट्राई कर दो आप, क्योंकि वो एग्जाम एनवायरनमेंट रहता है ना, तो वो थोड़ा प्रेशर डालता है स्टूडेंट पे, और वो लोग बोर्ड्स और कॉलेज एग्जाम वैसे ही लिखने वाले हैं, वो क्या बाद में लीनियंसी आ जाती है दूसरे पार्ट में, तो दे तो सकते हैं, बट वो जो कंडीशन रहता है एनवायरनमेंट, वो भी मैटर करता है, ऐसा है। हाँ इसके लिए देखो, आप देखो, अगर उसका जरूरत नहीं रहेगा ना, 1.5 आवर निकल सकता है ना, तो उसको भेज दो 10:30 को, अदरवाइज ठीक है, मैं बाद में करके देता बेटर। हाँ बट वो क्या है मैडम, क्लास एनवायरनमेंट है ना, वो 10-12 लोग रहेगा, एब्सेंट हुआ रहेगा से उसमें और इसमें फर्क पड़ता है ना, 50-60 लोग का, जैसा वो लोग बोर्ड में लिखते हैं, स्कूल में लिखते हैं, कॉलेज में, ऐसा एग्जाम है इसके लिए, और कुछ नहीं। हाँ तो हो सके तो भेजो, नहीं तो फिर कल कर देता हूँ। हाँ ओके। देखो सम नंबर 30 क्या दिया है, द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ पराग लिमिटेड इज 30,000 equity shares of 100 each and 50,000 preference shares of 100 each। भाई ने दोनों इश्यू किया हुआ है, 30,000 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपए वाले, और 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले। द डायरेक्टर सॉरी, ऑन बोथ दीज शेयर्स 80 पर शेयर वर कॉल्ड अप। आपको इधर ही बोल दिया कि भैया दोनों पे कितना कॉल्ड अप है अभी तक, 80 कॉल्ड अप ही है। 80 कॉल्ड अप का मतलब क्या, फर्स्ट या सेकेंड कॉल तक, जिधर तक है 80 रुपया ही मंगवाया है, 20 रुपया अभी भी मंगवाने का बाकी है, फाइनल कॉल अभी भी 20 रुपए का बाकी है। Directors forfeited 500 equity shares held by Ashish, who failed to pay the first and second call of each 20 per share.
They also forfeited 500 preference shares of Ashok, who failed to pay 20 per share on allotment and 20 per share on first call and 20 per share on second call. The director reissued these forfeited shares of Ashish at 60 per share, 80 paid up, and those of Ashok at 72 per share, 80 paid up. All the reissued shares were taken by Anaga. You are supposed to pass forfeiture and reissue entries. तो reissue के साथ एक और करनी है, that is transfer entry. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले तो ब्रेकअप. देखो, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों की फेस वैल्यू कितनी है? इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है. कोई प्रीमियम है? नहीं है. दोनों 80 कॉल्ड अप है, दोनों 80 कॉल्ड अप है. आर यू गेटिंग दैट? बोथ द शेयर्स आर 80 कॉल्ड अप. व्हाट डू यू मीन बाय 80 कॉल्ड अप? ये स्टेज पे आप फोरफिट कर रहे हो. कौन से स्टेज पे कर रहे हो? आफ्टर फर्स्ट कॉल या आफ्टर सेकेंड कॉल, राइट? सो पहला पार्ट पढ़ो क्या दिया है. कंपनी फोरफिटेड, द डायरेक्टर्स फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय आशीष. पहले तो इक्विटी शेयर्स आप फोरफिट कर रहे हो. इक्विटी 80 कॉल्ड अप फोरफिट कर रहे हो एट दिस स्टेज. 500 शेयर्स कैंसिल कर रहे हो हेल्ड बाय आशीष, who failed to pay the first and second call of each 20 rupees per share. उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल 20 ईच नहीं भरा. फर्स्ट और सेकंड कॉल उसने नहीं भरा, इसलिए आप कैंसिल कर रहे हो. अच्छा, ये 20 रुपया ये तो अभी भी मिलना. तो एक्चुअली देयर आर हाउ मेनी कॉल्स? 3 कॉल्स. फर्स्ट एंड सेकंड कॉल न भरने के बाद आप कैंसिल कर. फर्स्ट और सेकंड कॉल न भरने के वजह से आप कैंसिल कर रहे हो ना. और एक कॉल तो वैसे भी मिलना बाकी है फाइनल. तो टोटली कितने कॉल हो गए आपके? 3 कॉल का समय. मतलब द ब्रेकअप इज समवॉट लाइक दिस. द ब्रेकअप इज समवॉट लाइक दिस. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के शायद कुछ 40 रुपया होगा. आपका फर्स्ट कॉल का 20, सेकेंड कॉल का 20 और फाइनल कॉल का 20. दिस इज द सिचुएशन. वो प्रेफरेंस पे दिया हो सकता है. इसमें अपने को एप्लीकेशन अलॉटमेंट का इंटरनल ब्रेकअप नहीं दिया है. 10 30 20 20 30 10 व्हाटएवर इट इज, और 20 20 व्हाटएवर इट इज. बट अपने को कंसर्न भी नहीं है ना, वो पैसा आ चुका है. एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट टोटल कितना पैसा आ चुका है आपको? प्रीमियम नहीं है. तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसने भरा, मतलब 40 रुपया भरा. क्या नहीं भरा? फर्स्ट कॉल का 20, सेकेंड कॉल का 20, ये नहीं भरा. इसलिए यहां आके कंपनी ने क्या किया? उसका शेयर काटा, कैंसिल किया. ये समझ में आया? पहले देखो, पढ़ो, अभी स्टेटमेंट क्लियर होगा. देखो पढ़ो. डायरेक्टर्स फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय आशीष, who failed to pay the first and second call of each 20 per share. Can you see that? He did not pay the first call of 20 rupees. He did not pay the second call of 20 rupees. अब भाई ने फर्स्ट नहीं भरा, सेकंड नहीं भरा, एक बाकी है, तो 60 रुपए तो इधर ही हो गए. एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने बचे? 40 रुपीज. तो उसने भरा क्या? What did he pay? Application and allotment. आशीष ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 40 भरा, फर्स्ट कॉल 20 नहीं भरा, कंपनी रुक गया. सेकंड कॉल 20 नहीं भरा, अभी कंपनी की सटक ली. अभी यहाँ पे उसका शेयर कैंसिल किया. ऑन द सेम लाइंस, कैन यू टेल मी उस दूसरे वाले के साथ क्या किया? कब किया? इधर देखो क्या दिया है. दे ऑल्सो forfeited 500 preference shares of Ashok, who failed to pay 20 per share on allotment. इसका भी सेम सीन है, 80 कॉल्ड अप है. भाई ने 20 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट नहीं भरा, 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल नहीं भरा, एंड 20 पर शेयर ऑन सेकेंड कॉल भी नहीं भरा. तो इसका ब्रेकअप बता सकते हो क्या होगा? इसका ब्रेकअप है 20 20 20 20 एंड 20. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल. देखो क्या दिया है.
he did not pay what 20 on allotment, 20 on first call, 20 on second call, इसलिए इधर उड़ाया. 20 तो अभी भी मिलना बाकी है. ये कैसे पता चला 20 मिलना बाकी है? 80 कॉल्ड अप है, 80 कॉल्ड अप है तो 20 रुपए अभी भी मिलना बाकी है. तो इस स्टेज पे उड़ा रहे हो ना आप. तो भाई ने क्या नहीं भरा, ये 20 20 20 नहीं भरा, तो ये 60 हुआ और ये 20 तो बचा, तो 80 तो इधर ही हो गया. तो बचा कितना एप्लीकेशन 20. तो ये भाई ने भरा क्या, सिर्फ एप्लीकेशन. समझा? ये मेन चीज यही था. इधर ब्रेकअप आ गया तो अभी आराम से कर सकते. प्रीमियम तो है नहीं. करो, ट्राई करो. 4 फीचर एंड रीइश्यू एंड ट्रांसफर एंट्रीज. कम ऑन, डू इट ऑन योर ओन. उसके बाद ही करना है कि दोनों एंट्री करना है? उसके बाद के 4 फीचर के बाद देखो पहले उसका वो कौन है पहला वाला, आशीष. आशीष का 4 फीचर रीइश्यू ट्रांसफर खत्म करो. फिर दूसरे वाले को पकड़ो, कौन है वो, अशोक. अशोक का 4 फीचर रीइश्यू ट्रांसफर. इजी पड़ेगा. इंडिविजुअली करो. आशीष का 3 एंट्रीज, अशोक का 3 एंट्रीज. कम ऑन. आशीष का 3, अशोक का 3. ब्रेकअप समझा? ब्रेकअप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? बोलो क्या नहीं समझा. रीड द क्वेश्चन ना एंड ट्राई टू इंटरप्रेट ऑन योर ओन. मालूम पड़ेगा आया कि नहीं. रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू इंटरप्रेट. नहीं समझा तो पूछो आप. सिक्स एंट्री. अरे भाई 3 3 6 दोनों का 4 फीचर, दोनों का रेशियो, दोनों 80 कॉल्ड अप ही है. 500 इक्विटी फोरफिट करना है, वापस रीइश्यू करना है और ट्रांसफर करना है. 500 प्रेफरेंस फोरफिट करना है यही स्टेज पे. फिर वापस प्रेफरेंस रीइश्यू करो. प्रेफरेंस पर ये भाई ने ये भरा है. ये जो सर्कल किया हुआ ये भरा है. क्या है? रियल, आर्या, बंसी, रुत्वा, तानिया, पंडित, लीर. Come on. सर वो आशीष में शेयर फोर फीचर की कैपिटल में 10,000. किसमें? पहले वाले में हाँ. आशीष में 20,000 माइनस 40,000 है. 500 into 80. In the first case, did he pay the allotment or no? In the first case, yes, he paid application and allotment 40. देखो ना उधर क्लियर कट दिया है. फर्स्ट पार्ट में पढ़ो. आशीष failed to pay first and second call of 20 each. He did not pay first call, he did not pay second call. So he did not pay 20. Okay, so he has paid the remaining amount, that is 40. That is application plus allotment. दोनों में forfeit 80 called up पे ही हो रहा है ना? 80 कॉल्ड अप पे ही हो रहा है. रीइश्यू 80 कॉल्ड अप पे हो रहा है. अच्छा गाइस, 4 फीचर कब हो रहा है? 4 फीचर कब हो रहा है? 80 कॉल्ड अप पे हो रहा है और रीइश्यू भी 80 कॉल्ड अप पे ही हो रहा है. तो कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 80. कैपिटल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 80 रुपीज. सर forfeiture 80 called up पे हो रहा है, वो कैसे पता चला? पढ़ो उधर. Subscribed capital first line of Parag is 30,000 equity shares of 100 each and 50,000 preference shares of 100 each. On both these shares, 80 per share were called up. मिला? दिखा? दोनों पे 80 कॉल्ड अप है. ऊपर ही दे दिया है. हाँ बोल. बराबर. पहले आशीष का 4 फीचर रीइश्यू ट्रांसफर, भी अशोक का 4 फीचर रीइश्यू. सर अगर री सर हाँ
क्या बोल रहा है? अगर रीइश्यू में लॉस વધારે હોય તો શેર ફોરફીચર થી Impossible. Reissue loss cannot exceed forfeited profit. कंपनी इश्यू नहीं करेगा. Reissue loss cannot exceed forfeited profit. See now I'm solving it. Those who haven't got, please look at the board. एकदम चुप, quiet एकदम, मस्ती मत करो. First one. पहला कौन है? अशोक है कि आशीष? आशीष. इक्विटी वाला कौन है? आशीष. इसका 500 इक्विटी शेयर्स था, राइट? पहले 4 फीचर एंट्री. व्हाट इज द 4 फीचर एंट्री विदाउट प्रीमियम? इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू सीआईए टू शेयर 4 फीचर. इज दैट राइट? बराबर है. कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 500 इंटू व्हाट? 80 की 100, दैट्स 40,000. इस 40 में उसने क्या नहीं भरा? ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल क्लियर कर दिया 2020. सो 500 इंटू 40 नहीं भरा, सो दैट इज 20,000. और क्या भरा? 500 इंटू 40 भरा. ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भरा उसने. इज दिस क्लियर? सेकेंड एंट्री फॉर रीइश्यू. क्या प्राइस पे रीइश्यू हो रहा है? पढ़ो उधर. 60 रुपीज एट 80 पेड अप. 80 पेड अप मतलब आफ्टर सेकेंड कॉल, यही स्टेज पे. इज इट रीइश्यूड एट द एंड और रीइश्यू इन बिटवीन? इन बिटवीन, आफ्टर सेकेंड कॉल. कैसे मालूम पड़ा? 80 पेड अप 80 कॉल्ड अप. फुल्ली पेड अप फुल्ली कॉल्ड अप दिया होता तो मतलब एट द एंड. बराबर है. तो रीइश्यू, रीइश्यू की एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इज दैट करेक्ट? कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 80 की 100, 80 क्योंकि 80 कॉल्ड अप इश्यू हो रहा है तो ये हो गया 40,000. इज दैट राइट? बैंक में कितना आएगा? 500 इंटू 60 रुपीज मंगवा रहे हो, दैट इज 30,000. एंड 4 फीचर कितना? 500 into 20, that is 10,000. This is the loss. ये समझा? तीसरा एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. हाउ मच वुड यू ट्रांसफर? सब कैन यू ट्रांसफर पूरा 20 minus 10? Yes, because you have reissued all. So सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस. तो 20 minus 10. How much would you transfer? 10,000. 10,000. Is that right? Is that clear? Sir, second. अभी कर रहा हूँ. अभी अशोक के कितने थे? 500 प्रेफरेंस शेयर्स थे. बताओ मुझे पहला एंट्री 4 फीचर का क्या होगा? अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू व्हाट? CIA to share 4 feature. बराबर. How many? What will multiply your 500 shares with? What's your called up amount? 80. जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट. 100 तो अभी मंगवाया ही नहीं है. 80 से ही मंगवाया था, 80 से ही क्रेडिट हुआ था तो 80 से डेबिट करो. तो 500 into 80 will give you 40,000. To call in arrear, ये भाई ने क्या नहीं भरा है? He did not pay allotment, did not pay first call, did not pay second call. That last line they have given that. So did not pay 60 rupees. So 500 into 60, that's 30,000. And what did he pay, bichara? Only application, garib aadmi. He paid only application. 500 into 20, that is 10,000. Right? Then रीइश्यू. पढ़ो. प्रेफरेंस शेयर क्या प्राइस पे रीइश्यू हो रहा है? 72. एट 80 पेड अप. 80 पेड अप मतलब यू आर रीइश्यूइंग एट द एंड और इन बिटवीन? फुल्ली पेड अप 100 पेड अप 100 कॉल्ड अप मतलब एट द एंड. So right now it's not at the end, it's in between only. Entry क्या होगी? Bank share for feature to preference share. Bank share for feature to preference share capital. You'll multiply your preference share capital by what amount? By 80. 80 rupees. 500 into 80, that is 40,000. बैंक में कितना आएगा? 72.
72, 500 into 72, and loss. Okay, and you transfer. Can you transfer entire credit minus debit? Yes. Why? Because all the shares were reissued. What is wrong with you guys? 10 minus 4 कितना करने का है? 6,000. 10 minus 4 6,000. This is 10 minus. ठीक है? आया खुद से आया ये. Then और I think दो सम बाकी 15th बाकी है और एक कौन सा है? 34th question. 34th question में खाली आपको है ना बैलेंस शीट बनाने का है. I'll be doing the balance sheet part in the revision thing. Don't have it for test. Okay? बैलेंस शीट का सबका अपना एक्स्ट्रैक्ट बाकी है, उसके साथ ही मैं ये करवा दूंगा. ना ना बैलेंस शीट टेस्ट में नहीं. टेस्ट में 4 सम्स आएंगे आपके. 4 सम्स will be there for test. Okay, the breakup would be 8, 8, 8 and 6. Okay, test is on Tuesday. Test is on Tuesday. Shares test is on Tuesday. Okay, now shares test is on Tuesday. Start preparing. अच्छा अभी last sum number 15. That balance sheet part I'll be taking it the revision thing. एक साथ करवा दूंगा सबका. So one sum we are left out. Remember that. We'll do that together. तभी अभी last sum ले लो. 15th sum. Games and Company Limited. Give me a standard textbook. See now, sum number 15. 15th sum. This is practically very important concept. Okay, आपको in the actual 12th standard it is just for theory sake. Objective पूछ सकते हैं. मैंने एक sum खाली डाला हुआ है for practice sake. आगे जाके काम आएगा आपको company accounts में. This is regarding business taken over. जैसे business एक दूसरे को खरीदते हैं. Absorption. एक business दूसरे business को acquire करता है. तो वो कैसे होता है? वो इस एंट्रीज के थ्रू होता है. गेम्स एंड कंपनी लिमिटेड acquired the running business of मिस्टर गुंथे. तो मिस्टर गुंथे कोई अपना बिजनेस रन कर रहा था. गेम्स एंड कंपनी आई और उसको क्या किया? टेक ओवर कर लिया. खा गई. बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई. सो दिस इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन. दिस इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन. ये मर्जर या अमालगमेशन नहीं है. मर्जर अमालगमेशन में क्या होता है? दोनों बिजनेस बंद होके एक तीसरा बिजनेस फॉर्म होता है. जैसे वोडाफोन आइडिया, तो दोनों मर्ज होके इट वाज अ थर्ड बिजनेस कॉल्ड वी. ओके, वोडाफोन आइडिया टुगेदर. वैसे सो कोलगेट एक कंपनी है, पामोलिव एक कंपनी है. दोनों मर्ज होके कोलगेट पामोलिव, द ऑल टुगेदर न्यू कंपनी. दैट दिस इज एक्विजिशन
बंधन बैंक टुक ओवर ग्रोह फाइनेंस का कंपनी, तो पूरा अब्जॉर्ब कर लिया। तो टाटा ने अभी एयर इंडिया को पूरा अब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन, पूरा अपने में मर्ज कर लिया उसने। ठीक है, So what is mergers then? merger is when two entities who are of almost equal strength, they get dissolved and they form a third entity. That's merger. Merger to a third entity. Colgate Palmolive, वो अलग अलग कंपनी, both are different. Okay, both are different companies. Asian Paint, Berger Paint. पूरा बिजनेस अक्वायर करके खुद में कन्वर्ट कर लिया, उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्टेक सब इसके हाथ में आ गया, वो उसका सब्सिडरी जैसा काम करेगा। इज दिस क्लियर? जो पेरेंट कंपनी डिसीजन लेगी वो छोटे कंपनी को मानना पड़ेगा। जैसा भी रिलायंस इज ऑन अ स्प्री ऑफ अब्जॉर्प्शंस। रिलायंस ने so many years done acquisitions in the past years. अभी recently took a chain of this अपना 7-Eleven को ले लिया, फिर उससे पहला वो टॉय चेन था हैमलीज, उसको अब्सॉर्ब कर लिया, फिर अपना वो टीवी वाला था वो सेट टॉप बॉक्स वाला हैथवे को टेक ओवर कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन खाली उसका अनिल अंबानी वाला लिया इसने, अडानी ने, आर पावर जो था। बट ये दिस इज ऑल अब्जॉर्प्शन, दिस इज ऑल्सो अब्जॉर्प्शन, अपने अंदर एक्वायर करके वो रिलायंस के ब्रांड नेम पे जाना जाएगा, ऐसा। इज दिस क्लियर? सो उसका कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अभी रहने वाला नहीं, दैट इज अब्जॉर्प्शन। ब्रांड्स नहीं, बिजनेस वो फॉर एग्जांपल हमरा दैट इज मर्जर। अभी वो देखो, ये अपना बजाज एलियांज है, टाटा एआईजी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। प्रूडेंशियल इज अ यूके बेस्ड कंपनी, आईसीआईसीआई इज इंडियन बेस्ड। इंश्योरेंस में जॉइंट वेंचर है दोनों का, दैट्स जॉइंट वेंचर। हाथ मिलाया हुआ है, ऐसा। तो टाटा एआईजी इज अ यूरोप बेस्ड कंपनी, टाटा इज अ इंडियन बेस्ड कंपनी। दोनों ने इंडिया में काम करने के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है, दैट्स कॉल्ड जॉइंट वेंचर। मर्जर मतलब क्या, दोनों कंपनी जुड़ गए। अभी वो वोडाफोन आइडिया सब इंडिया में, पैन इंडिया सब जगह वोडाफोन आइडिया ही रहने वाला है। आइडिया का कोई सेपरेट अस्तित्व अभी रहा नहीं है। आइडिया एंड वोडाफोन आर टुगेदर, चिपक के जाएगा, ऐसा है। और पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया तो दैट्स अब्जॉर्प्शन, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी चली जाएगी, ओरिजिनल आइडेंटिटी रहने वाली नहीं है, ऐसा है। ओके, अभी बिजनेस, कोई भी बिजनेस को हाउ डू यू परचेज इट? यू परचेज इट बेस्ड ऑन इट्स बैलेंस शीट और उसका लायबिलिटी, और उसके ऊपर आप गुडविल देते हो, दैट इज प्रीमियम फॉर दैट नेम एंड रेप्यूटेशन। फॉर एग्जांपल, गुंथे का एसेट्स था 50 लाख का और लायबिलिटी थी 8 लाख की। कैन यू सी दैट? तो ये गुंथे की बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिख रही थी। कैपिटल, ये गुंथे का इन्वेस्टेड पैसा था, कैपिटल प्लस रिजर्व, ये नेटवर्क हो गया उसका 42 लाख। तो अगर गेम्स लिमिटेड को गुंथे का बिजनेस खरीदना है तो वो कैसे वैल्यू करेगा? बेस्ड ऑन इट्स बैलेंस शीट, बेस्ड ऑन इट्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखेगा एसेट कितने हैं, 50 लाख तेरे एसेट हुए, मेरे इसकी लायबिलिटीज थी 8 लाख, बोलेगा तेरी लायबिलिटीज भी मैं अक्वायर कर रहा हूं, मतलब गुंथे को अभी वो लोन चुकाने की जरूरत नहीं है। गेम्स ने वो लायबिलिटी ले ली है तो गुंथे को 8 लाख रुपए कम दे देगी। गुंथे को कितना देगी? टोटल 42 लाख। एसेट लिया 50 लाख का, कभी कभी खाली एसेट भी टेक ओवर कर सकती है, लायबिलिटी ना भी ले, तो गुंथे को 50 लाख दे देगी। 50 लाख का एसेट लेके गुंथे को 50 लाख रुपया देकर रवाना कर देगी। या तो फिर
इधर जैसे हो रहा है एसेट और लाइबिलिटी दोनों टेक ओवर हो रहा है, तो 50 लाख का एसेट भी लिया मैंने, गुंथे का 50 लाख का एसेट लिया तो मुझे उसको 50 लाख देना है, सामने उसका लाइबिलिटी भी मैं ले रहा हूँ, मतलब मैं गुंथे को बोल रहा हूँ तू देख मैं तेरे को 50 देगा तो 8 लाख का लोन चुकाने वाला है, तू मत चुका, मैं तेरा लोन चुका देगा, मैं तेरी लाइबिलिटी टेक ओवर करता हूँ, आई पे ऑफ दैट लोन, आई विल गिव यू 42 लाख, तुझा हॉलीडे मना, इज दिस क्लियर? उसको रवाना कर दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप एसेट भी ले रहे हो और लाइबिलिटी भी, तो 50 माइनस 8, हाउ मच यू आर गिविंग टू गुंथे? 42 लाख। दिस इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन। अभी इसमें गुंथे का कोई वोटिंग से राइट कुछ होने वाला नहीं है, मेजोरिटी कंट्रोल किसके हाथ में आ गया है? गेम्स एंड कंपनी के हाथ में आ गया। तो Okay. सर एयर इंडिया का टेक ओवर हुआ है, सो हाँ. टाटा हैज आल्सो टेकन ओवर इट्स 10,000 crore लोन. Yes, now Tata will pay off that loan, obviously. उसमें आधा तो बैंक्स को ही कट ऑफ लेना पड़ेगा, 4-5 हजार करोड़ में पटाखे अभी चुका देगा बैंक्स वगैरह। इट बिलोंग टू टाटा 50 years बैक, उससे लिया, गवर्नमेंट ने लिया, कचुम्बर किया और वापस दिया ले, अब वापस उसको वापस अच्छा बना, वापस हम लोग ले लेंगे, तो ऐसा हालत होता है, एड़ा बनाने का। इवन दिस एयर एशिया अभी जो आया ना, टाटा ने स्टार्ट किया, सिंगापुर एयरलाइन और इंडियन, इसका टाटा एयरलाइन का जेवी है वो, एयर एशिया नहीं, विस्तारा, सॉरी विस्तारा। दिस वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय टाटा ओनली इन द ईयर 94, उसको गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया और सिंगापुर वाले ने उसको चलाने का ले लिया राइट, इंडिया में उसको मिलने वाला था, गवर्नमेंट एंड ऑल टांग अड़ा दी कि नहीं, फॉरेन एयरलाइन है उसको रहने दो, या पैसा वैसा खिला के कुछ तो काम किया, वापस इसी के हाथ में आ गया अभी टाटा विस्तारा ऑल्सो। तो विस्तारा ऑल्सो वाज द सेम स्टोरी, बिलोंग टू टाटा। अक्सा एयरलाइंस है ना, एयरलाइंस इज अ डम्प बिजनेस, डम्प मतलब डूम्ड बिजनेस बोलते हैं उसको। एयरलाइन का है ना 60% कॉस्ट इज इन एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल का भाव चलता है कम से कम 250 से 300 रुपया लीटर, और उसका 50 से 60% कॉस्ट एयरलाइन चलाने में जाता है आपका फ्यूल का, और फ्यूल का हमेशा प्राइस बढ़ते ही जाता है क्योंकि डिमांड है, सप्लाई कंस्ट्रेंड है, तो बढ़ते ही जाता है, तो आपका वो भाव कॉस्ट कंट्रोल में आने वाला है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, फ्लाइट में इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, तो एक फ्लाइट नहीं तो 500 600 700 करोड़ का आता है वो तुम्हारा 30 जो A380 एयरबस, 320 एयरबस, सब 500 से 1000 करोड़ का आपका फ्लाइट आता है, और 20 साल का इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, टिकट का भाव कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है, तुम ज्यादा टिकट कम करेगा, पब्लिक सुमड़ी में लो कॉस्ट एयरलाइंस में निकल जाएगा। ये सब अभी सबसे ज्यादा चलने वाला है इंडिगो और गो एयर ही अभी, क्यों? क्योंकि सस्ता टिकट देता है। तुम चेक करेगा फ्लाइट बुक करने का बॉम्बे टू दिल्ली, तुम क्या देखेगा? सबसे कम भाव देखेगा। तुम थोड़ी 2 घंटे में ऐसा मेरे को एरोस्टेस को देखने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छा फैसिलिटी चाहिए, ये सब थोड़ी सोचने वाला है तुम। So you are not going to see for all those facilities for 2 hours. Is that right? तो 2 घंटे में तुम वो सब फैसिलिटी देखने वाला, तो कभी जिंदगी में प्राइस बढ़ने वाला नहीं है, कभी जिंदगी में प्राइस बढ़ने वाला नहीं है। बढ़ाएगा तो कोई दूसरा घुसने ही वाला है मार्केट कैप्चर करने के लिए। तो तुम एक जगह नहीं, दिस हैपेंड, किंगफिशर डिड ऑल दीज टैक्टिक्स, मॉडल्स को एयर होस्टेस बना के लेके आया था। यस, इट हैपेंड इन 2007-8, उसका जो कैलेंडर मॉडल्स वगैरह सब रहता था बियर वाला, उसको इधर एयर होस्टेस बना के लेके आया था, एंड इट वाज अ चार्म ऑफ अट्रैक्टिंग द पीपल got attracted and they boarded the airlines also due to this, one of the factors, due to air hostess, due to headphones, due to liquor सर्व करने लगा था, but he raised the ticket prices also, खर्चा भी उतना है, और बाद में लो कॉस्ट, बाद में बुद्धि ठिकाने पे आई, साला ये 2 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है, अपने को जाना है अपने ठिकाने पे, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो बादल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा हालत हो रहा है। तो फिर इधर वापस वो उसका सेम हालत हुआ, पब्लिक आया नहीं और खर्चे में ज्यादा चला गया, किंगफिशर है। सो एयर देखो, तुम पैसा कैसा कमा सकता है, या तो तुम कॉस्ट कम करो या तो तुम रेवेन्यू बढ़ाओ।
तो तुम्हारे को खाने को मिलेगा ना प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब इनकम। खर्चा कम होना चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, प्राइसिंग पावर होना चाहिए। तुम जब चाहे थोड़ा थोड़ा भाव बढ़ा सकता है, डिमांड कम होने वाला नहीं है। तो प्राइसिंग पावर रहेगा और कॉस्ट कम कर सकता है तो प्रॉफिट मिलेगा। एयरलाइन का उल्टा है, ना प्राइसिंग पावर है ना भाव बढ़ा सकता है, और खर्चा तो लगा पड़ा ही है पीछे से। खर्चा तो बढ़ने ही, एयर टर्बाइन फ्यूल ही खा जाता है 60-70% कॉस्ट तुम्हारा। ऊपर से ये जब ये आया अपना कोरोना वोरोना ठक करके अभी 50% कैपेसिटी पे दे आर रनिंग। 1-2 साल खराब गया, तुमको 3-4 साल 5 साल तक प्रॉफिट में निकलने देगा ही नहीं। और एट प्रेजेंट ऑल द एयरलाइंस आर लॉस मेकिंग, सब लॉस मेकिंग हो गया है। स्पाइसजेट, इंडिगो, गो एयर, इंडियन एयरलाइन तो पूरा कबाड़ी, और एयर इंडिया तो पूरा 10,000 करोड़ का लोन लेके फिर तुमको लोन लेने का टोपी घुमाने का। लोन लो खर्चा करो, लोन लो खर्चा करो, लोन लो खर्चा करो। तो ऐसी तो उसमें तुम्हारा कुछ वेल्थ अप्रिसिएशन होने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। वर्ल्ड ओवर फर्क नहीं, एम नहीं, इंटरनेशनल का भी सेम ही हालत है। प्रॉफिट होता है बट लिमिट में, एक्सट्रीम। तुमको जैसा एप्रिसिएशन मिलता है, ग्रोथ मिलता है 10%, 15%, 20% हर साल, वो ग्रोथ होने वाला नहीं है। देख के देखो उसका हिस्ट्री। कोई भी एयरलाइन ले लो, वर्ल्ड का कोई भी एयरलाइन ले लो, फ्रांस है, वो अमेरिका वाला ले लो, फ्रैंकफर्ट ले लो, ऑस्ट्रेलिया का क्वांटास ले लो, ये ले लो अपना एमिरेट्स ले लो, ऑल एयरलाइन, एथियाल, सबका यही हालत है। तुम फ्यूल कॉस्ट इज द मेन थिंग, वो गले पे आता है। जेट तो अच्छा था ना, तो क्यों अच्छा अच्छा कुछ नहीं था, उसका भी सेम ही हालत था। एक लिमिट तक तुम सस्टेन कर सकता है, लोन आएगा चुकाएगा, वो भी लोन्स लेके बैठा हुआ था। लोन पे जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, टिल द म्यूजिक इज ऑन, डांस इज ऑन, वंस द म्यूजिक स्टॉप्स एवरीथिंग स्टॉप्स, ऐसा है। लंबा चलने के लिए तुम बैलेंस शीट में देखो, उसका बैलेंस शीट सबका अवेलेबल है, कितना लोन्स भरा पड़ा है। जब तक लोन का गाड़ी चालू है तब तक चालू है, लोन देने का एक टाइम तो बंद करेगा। अल्टीमेटली ओनली लो कॉस्ट एयरलाइंस कैन सस्टेन प्रॉफिट, तो वो भी करने का बहुत डिफिकल्ट है। सस्टेनेबिलिटी कर सकता है कौन सा, लो कॉस्ट कैरियर। लो कॉस्ट मतलब ये इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट भी है बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इंडिगो, गो एयर बेसिकली ये लोग ने इसके लिए पहले तो फ्री फूड देता था ऑन ट्रैवल, आपको फैसिलिटी नाश्ता वास्ता रहता था, वो भी देता था, अभी सब बंद कर दिया। एवरीथिंग इज पेड, एवरीथिंग इज पेड इन एयरलाइन, ओनली द टिकट प्राइस फ्रॉम हियर टू देयर आपको ड्रॉप करके आएगा ट्रेन के जैसा, अंदर का जो खरीदने का खरीदो उसके पैसे, ऐसा है। और ऊपर से क्या है, इन इंडिया आपको खाली एक चीज के लिए एयरलाइन काम आता है, टाइम सेविंग। जिसको टाइम का कंस्ट्रेंट है वो भागेगा एयरलाइन में। अब इंडिया यूएसए जैसा तो एकदम डेवलप्ड इकोनॉमी है नहीं कि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट हो गया पब्लिक के लिए। इधर साला वो थोड़ा एयरलाइन का बहुत ज्यादा हो गया, पब्लिक सीधा ट्रेन प्रेफर करके निकल जाएगा दूसरे जगह पे। क्योंकि तुम इमेजिन करो, अभी तुमको शॉर्ट डिस्टेंस दिल्ली जाने का है तो तुमको राजधानी 14-15 घंटे में पहुंचा देता है, और तुम एयरपोर्ट में 2 घंटा पहले, घर से 1 घंटा पहले निकलो, 2 घंटा फ्लाइट का, उधर आधा घंटा चेकिंग का, 6 घंटा तो तुमको फ्लाइट में लगता ही है। तो साला तुम 8-9 घंटा और डाल के ट्रेन में निकल जाएगा राजधानी में, 3,000 रुपया टिकट है उसका। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो इन इंडिया दैट एयरलाइन वाला इज तबला only. Now see, sum number 15, Games and Company Limited acquired the running business of Mr. Gunthe. The business consisted of assets of rupees 50 लाख। गुंथे का एसेट कितने का था, 50 लाख रुपए का एसेट था, बराबर है। एंड लायबिलिटीज कितना था, 8 लाख। तो उसको देने का कितना अपने को, 42 लाख। इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। ओके, अब ये आप पैसे है ना 3 या 4 तरीके से चुका सकते हो। नंबर 1, रोकड़ा, सीधा कैश दो गुंथे को और रवाना करो, बराबर है, कैश बैंक चेक देकर रवाना करो। नंबर टू आप उसको बना सकते हो अपना इक्विटी शेयर होल्डर, उसको बना सकते हो अपना इक्विटी शेयर होल्डर। बोलोगे देख मैं तेरा एसेट ले रहा 50 लाख, तेरा लाइबिलिटी ले रहा 8 लाख, मुझे तुझे कितना देना है, तेरे को शेयर देता हूं, चाहिए क्या? गुंथे बोलेगा चाहिए। आपका कंपनी अच्छा है, गुंथे बोलेगा चाहिए। क्यों? इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। क्योंकि अगर आप एक कंपनी हो और आप अपने शेयर्स उसको देते हो, उसका भी फायदा है, आपका भी फायदा। आपका फायदा क्यों है, पैसा देने का जरूरत नहीं है, आपने उसको क्या बना दिया, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या, आप बेसिक एंट्री क्या मारते हो शेयर्स इश्यू करने की, बैंक टू कैपिटल, एसेट बढ़ा कैपिटल बढ़ा। इधर क्या मार रहे हो, एसेट टू कैपिटल।
एसेट खरीदा और शेयर्स दिया, एसेट खरीदा और शेयर्स दिया, एसेट बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा, समझा? तुम नॉर्मली क्या करते हो पब्लिक इशू में, बैंक टू कैपिटल, बैंक एसेट बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं गुंते से एसेट्स ले रहा हूँ, बैंक भी एसेट ही था, पैसा ही था, मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं मशीन ले रहा हूँ, फर्नीचर ले रहा हूँ, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट ले रहा हूँ, और उसके जगह मैं क्या दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ। तो मेरा फायदा क्या हुआ, मेरे को पैसा देने का जरूरत, मेरा वो क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया, और उसकी चलने वाली तो है नहीं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वो, चलेगी तो मेरी, शेयर होल्डर बना दिया, मेरा फायदा है, मेरे को पैसा देने का जरूरत नहीं, उसका भी फायदा है, उसको क्या मिल गए, शेयर्स मिल गए। अब मार्केट में भाव बढ़ेगा तो आगे बेच के, कम हुआ तो नहीं लेगा, वो भी शाना है, तो दोनों पार्टी अग्री होना चाहिए, तो वो शेयर्स लेगा तो हम शेयर्स देंगे। अच्छा कंपनी है तो उसको आगे हाई प्राइस में बेचने को मौका मिलेगा। इज दिस क्लियर? तीसरा ऑप्शन होता है इक्विटी के जगह प्रेफरेंस, आप इक्विटी के जगह क्या दे सकते हो, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हो। एंड चौथा ऑप्शन होता है डिबेंचर, उसको क्या दे सकते हो आप, डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब आपने उसको लोन गिवर बना दिया, मतलब कंपनी को क्या बना दिया, लोन गिवर। उसने ऐसा बता दिया कि कंपनी को लोन दिया हुआ, जैसे शेयर कैपिटल बताया ना आपने, वैसे लोन ले लिया उससे, आप लोन पे उसको इंटरेस्ट दोगे, हर साल उसको क्या दोगे, इंटरेस्ट। इसमें भी फायदा है आपका, क्या, पैसा नहीं गया, उधारी पे तो इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शेयर्स लिया है तो डिविडेंड देना पड़ेगा, लोन्स लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? बट शेयर्स पे डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी, लोन पे इंटरेस्ट इज कंपलसरी। सो 3-4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले हैं उसको, एनी गेसेस? शेयर्स देंगे और उसको क्या बना देंगे, शेयर होल्डर। आपको भी ये फायदा हो सकता है, आपका किधर गांव में प्रॉपर्टी रहेगा और सपोज उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कोई कंपनी आके वो प्रॉपर्टी एक्वायर करने आ रहा है, तो अच्छा खासा पैसा देके जाएगा, तेरा रहेगा ना राजस्थान में, गुजरात में, तो हाँ देख, तो सबका रहता है। तो 2-4 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, कोई कंपनी आई, अभी हो रहा है वहां पे कमर्शियलाइजेशन, तो कंपनी के साथ डील करने का कि भैया मैं जमीन बेच रहा हूँ, आप मुझे शेयर्स दे दो, आप अगर अच्छा कंपनी है तो। ओके, तो उसमें क्या होता है, कंपनी है ना आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे भी शेयर्स दे देगी, कभी कभी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी शेयर दे सकती है, यहाँ पे अलाउड है। डिस्काउंटेड प्राइस इन द सेंस, मार्केट में वो शेयर प्राइस चल रहा है 200 रुपया, आपको शेयर मिल जाएंगे 150 रुपीज, ऐसा। तो आप तुरंत 150 का शेयर 200 में बेच के प्रॉफिट कर सकते हो। नहीं, इसमें कोई लॉक इन नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी बड़ी नहीं होती है, वो कंपनी हजारों करोड़ में डील कर रही है और आपकी 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी सपोज ले रही है, तो 10-15 करोड़ से उसको फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये दोनों नेगोशिएट कर सकते हैं और आपको मिल सकता है, तो यू कैन यूज दैट। गेम्स एंड कंपनी लिमिटेड acquired the running business of Mr. Gunthe. Okay, the business consisted of assets of 50 lakhs and liabilities of 8 lakhs. Equity shares of 100 each fully paid were issued to the vendors in the payment of purchase consideration. What is purchase consideration का मतलब? In payment of purchase consideration, asset खरीदा, बदले में क्या दिया उसको, शेयर। Past journal entries in the books of Games and Company when number 1 shares are issued at par, number 2 shares are issued at premium. दोनों केसेस इंडिपेंडेंट है, पहले पार पे करेंगे फिर प्रीमियम पे। सिर्फ 4 एंट्री का सम है, 2-2 एंट्रीज करनी है। पहला एंट्री मुझे बताओ, आप एसेट अक्वायर कर रहे हो, तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर बाइंग एन एसेट? नॉर्मल एंट्री, मशीन खरीदते हो तो क्या एंट्री होती है, मशीन टू बैंक। क्रेडिट पे खरीदते हो तो मशीन टू क्रेडिट, पैसा देना बाकी। तो यहां पर भी सेम एंट्री करोगे, पहले आप एसेट लेके आओगे ऑन क्रेडिट और फिर उसको क्या करोगे, शेयर्स। ताबड़तोड़ एसेट लेके शेयर्स देने वाले नहीं, आप पहले एसेट खरीदो ऑन क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी इधर, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स क्योंकि नाम नहीं पता है क्या लेके आ रहा है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 50 लाख। क्यों एसेट डेबिट किया, आपका एसेट बढ़ा, आपने खरीदा। अच्छा, लायबिलिटी भी लेके आ रहे हो, तो लायबिलिटी क्या करोगे, क्रेडिट।
उतना कम कर देगा आपका एसेट का वैल्यू को। तो टू सन्ड्री liabilities account, this would be 8 lakh rupees. Sundry assets account debit 50 lakhs to sundry liabilities 8 lakhs, बराबर है। टू ये क्रेडिट पे लिया है ना, तो टू गुंथेज अकाउंट, ये अपना क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर बढ़ा 42 lakhs, इसको पैसा देना बाकी है। नॉर्मली इट इज एसेट टू क्रेडिटर, राइट? अभी अभी किया हमने डिस्कस, मशीन टू क्रेडिटर, इधर एसेट टू लायबिलिटी टू क्रेडिटर, इतना पैसा काट लो, इसको भी कितना देना बाकी है? 42 लाख, 42 लाख देना बाकी है। दिस इज बिजनेस टेकन ओवर, बिजनेस टेकन ओवर। और इसके अगेंस्ट अगर आप गुंथे को चेक देके रवाना करते तो एंट्री क्या होती? गुंथे टू बैंक, गुंथे टू बैंक। अगर आप उसको कैश देते तो गुंथे टू कैश। अब आप उसको क्या दे रहे हो? शेयर्स। तो उसको क्या कन्वर्ट कर रहे हो? ये क्रेडिटर है, गुंथे इज योर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर घट रहा है और उसको आप क्या बना रहे हो अभी? शेयर होल्डर। तो गुंथे अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो गुंथे घट गया, लायबिलिटी घट गई। सर डायरेक्टली फर्स्ट एंट्री में शेयर्स नहीं लिख सकते? नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, ऐसा होता भी नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली डील होती है, प्रॉपर्टी आती है, सब फिर ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनते हैं, फाइनल एग्रीमेंट बनते हैं, फिर आपके शेयर वारंट्स वगैरह इश्यू होते हैं, फिर शेयर्स इश्यू होते हैं, तो टाइम लगता है बीच में, सेम डे दोनों नहीं करना है। सो गुंथेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट केस? हाउ आर वी इशूइंग द शेयर्स? एट पार, मतलब 42 लाख से इसको सेटल किया, ये समझा आपको? गुंथे गुंथे कट हो गया और बदले में क्या इश्यू किया उसको? शेयर। कितने शेयर? 100 रुपीज के है ना, तो 42,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 42 लाख। इसको क्या मिल गए? गुंथे को कितने शेयर्स मिल गए? 42,000 शेयर। दिस इज इश्यू ऑफ 42,000 इक्विटी शेयर्स फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। नहीं, सीए फाउंडेशन पे, ठीक है। सो इट इज परचेज कंसिडरेशन, टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये बात समझ आई आपको? अब आगे देखो, ये हो गया, बस यही दो एंट्री है। इसमें क्या हुआ? गुंथे गुंथे कट हो गया। कंपनी के बुक्स में क्या हुआ? एसेट आया, लायबिलिटी आया और शेयर कैपिटल बढ़ गया। क्या कम हो गया? बढ़ गया। कैपिटल और शेयर दोनों बढ़ा। कैपिटल बढ़ गया, अरे उसको तुमने ओनर बना दिया, उसको तुमने ओनर बना दिया। पार्टनर आता है ना, पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री करते हो? बैंक टू कैपिटल। पार्टनर फर्नीचर लाया तो फर्नीचर टू कैपिटल। वही हो रहा है, गुंथे पार्टनर बन गया, फर्नीचर लाया, फर्नीचर टू कैपिटल। गुंथे बिकेम योर पार्टनर, गुंथे बिकेम योर पार्टनर, बट ही डिड नॉट गेट मनी। व्हाट डिड ही गेट? फर्नीचर लाया, फर्नीचर। गुंथे फर्नीचर लेके आया। अभी तक एग्जांपल पे ही हो। ओ महान, सुनो, हमने गुंथे का बिजनेस अक्वायर किया ना, और उसको बदले में क्या दिया? शेयर्स इश्यू किया। बोलने का मतलब वी मेड गुंथे अवर पार्टनर, वी मेड गुंथे अवर पार्टनर। पार्टनरशिप में ऐसे सोचो, अंश और हर्ष दोनों पार्टनर थे, ओके, और नीर आया, नीर को बोला कि तू कैश मत लेके आ, हमें फर्नीचर की जरूरत है, तो एंट्री क्या करेंगे? फर्नीचर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो वैसे गुंथे आया, गुंथे क्या लेके आया? फर्नीचर लेके आया, तो फर्नीचर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के जगह शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल के जगह, क्योंकि ही इज होल्डिंग दैट मच ऑफ शेयर, 42,000। गुंथे इज वन ऑफ द ओनर्स नाउ, ही इज वन ऑफ द पार्टनर्स नाउ। शेयर होल्डर्स आर नथिंग बट ओनर्स, पार्टनर्स। आर यू गेटिंग दैट? जो कंसेप्ट पार्टनरशिप में था वही कंसेप्ट इधर है, सेम हो रहा है। खाली फर्क समझा? पब्लिक इश्यू और ये इश्यू में क्या फर्क है? पब्लिक इश्यू में क्या मिलता है? पैसा, बैंक टू कैपिटल। इधर क्या मिला? फर्नीचर टू कैपिटल, एसेट टू कैपिटल।
समझा? अब बैठा दिमाग में? वो शेयर्स को अलग ट्रीट मत करो, शेयर तो खाली डिवीजन है ब्रेकअप ट्रांसफर करने के लिए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कैपिटल बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। सेकेंड एग्जांपल में क्या हो रहा है? वापस यू आर टेकिंग ओवर द बिजनेस एंड इशूइंग शेयर्स बट एट प्रीमियम। तो कंपनी अगर बहुत अच्छी है तो गुंथे को बोलेगी, देख भाई गुंथे, तेरा बिजनेस तो टेक ओवर कर रहे हैं, ये 42 लाख देना है, लेकिन 42 लाख हम लोग 100 रुपए के शेयर में नहीं देंगे, 25 में, 125 में लेने का तो ले। गुंथे भी बोलेगा दे दो, क्यों? उसको लग रहा है चला मार्केट में 125 का हो जाएगा, 150 160 बेच के निकल सकता है। तो 100 का शेयर क्या प्राइस पे दे रही है कंपनी? 100, तो 25 रुपया क्या हो गया? फर्स्ट एंट्री विल इट चेंज? कॉपी करनी है। लिख दो, चलेगा, सेम एज अबव। ओके, फर्स्ट एंट्री सेम एज अबव। व्हाट अबाउट द सेकेंड एंट्री? कैन यू गेस द सेकेंड एंट्री? Gunthe's account debit to what? Equity share capital to share premium. फर्क सिर्फ क्या है अभी? कैपिटल के साथ क्या आ रहा है? प्रीमियम, दोनों आ रहा है। देखो अभी आपको गुंथे को कितना देना था? 42 लाख। क्या आप उसको ज्यादा शेयर दोगे कि कम शेयर दोगे कि सेम शेयर दोगे? अभी क्या होगा? कम शेयर, क्योंकि आप 100 के शेयर कितने में दे रहे हो? 125। तो कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 42 लाख डिवाइडेड बाय 125, 40,000। आई डोंट नो, 40 नहीं है, कितना हो रहा है ये? 42 लाख डिवाइडेड बाय 125। करो कैलकुलेटर पे, कर लो फटाफट, बोलो। 33,600। तो अभी क्या बोल रही है कंपनी? गुंथे को बोल रही है कि देख, यू आर अवर शेयर होल्डर बट यू हैव टू टेक द शेयर्स एट 125, जो कि आपके साथ प्रैक्टिकली होगा। मैं जमीन का एग्जांपल दिया ना, आप अगर जमीन कोई कॉर्पोरेट को बेच रहे हो और उससे शेयर्स की डील कर रहे हो, तो उसका शेयर का फेस वैल्यू 10 है, मार्केट में चल रहा है 50 का, आपको देगा 40 में, आपको देगा 40 में, लेकिन वो फिर भी 30 रुपया प्रीमियम पे ही दे रहा है, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। समझा? 10 का शेयर आपको 40 में दे रहा है, मतलब 30 रुपया प्रीमियम। तो कितने से डिवाइड होगा 42 लाख? अभी 125। इधर कितने से किया 42 लाख को? मैंने 100 से, क्योंकि द शेयर्स वर इशूड एट 5। तो अच्छी कंपनी होती है तो प्रीमियम पे ही करेगी, और प्रेजेंट डे ज्यादातर सब प्रीमियम पे ही शेयर्स इश्यू करते हैं। अब बताओ कैपिटल में कितना लिखेगी कंपनी? 33,600 into 100 फेस वैल्यू, दैट इज 33 लाख 60,000। एंड प्रीमियम कितना होगा? 33,600 into 25, दैट इज 8,40,000। नरेशन में वही है, खाली इश्यू ऑफ 33,600 shares, issue of 33,600 equity shares at 25% premium. Okay, is this clear? ले लो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑब्जेक्टिव्स फटाफट। सर 5 मिनट में कैसे? चलो चलो हो जाएगा, उतना ही है। सर 5 मिनट में क्या करेंगे? उतना ही है, 5 मिनट का ही ऑब्जेक्टिव है, फटाफट। पेज 338, पेज 338, कम ऑन, पेज 338। यस हितांशी, come on, page 338. Tell me, first one, the balance of share forfeiture account is transferred to dash account after reissue. Capital, page 338. The balance of share forfeiture account is transferred to dash account after reissue. Capital reserve. Premium received on issue of shares is shown on Liability dash side. side of balance sheet. Premium on issue. Liability side. Liability reserve है, profit है, तो liability side.
shareholder get dash on shares, dividend. Document inviting to subscribe the shares to the company is called Prospectus. prospector. Red herring prospector, RHP. अबे आईपीओ आता है तभी एडवर्टाइज करने के लिए क्या देता है कंपनी? प्रोस्पेक्टस, मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो जैसा रहता है। उसमें बताया था ना, सब कंपनी का अच्छा अच्छा काम लिखा रहता है, पास्ट हिस्ट्री लिखी होती है, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। बुरा कौन लिखेगा, पैसा लेने का है तो। As per SEBI guidelines, minimum amount payable on share application should be dash of nominal value of share. Actually, this question is wrong. Okay, this question is wrong. There are two minimum amounts. One is as per Companies Act, which is 5%, and one is as per SEBI, that is 25%. तो आपके पास इधर ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 5%. तो राइट 5%. Is this clear? Actually, पीछे कितना दिया है? हाँ, wrong है. 10% is wrong. So Answer if is it doesn't 5%. fill in the blanks, then what do we write? 25. 25%. सेबी का गूगल करके चेक कर लो। सेबी का फेस वैल्यू का एप्लीकेशन अमाउंट इज 25%। कंपनीज एक्ट का इट इज 5%। ठीक है, बट आप लोग यार उधर लिखो पेंसिल से, कंपनीज एक्ट का 5% है, सेबी इट इज 25%। कंपनीज एक्ट 5%, सेबी 25%। ठीक है, नाउ इधर कुछ नहीं दिया है तो ऑप्शन में लिख दो 5%। देन when the shares are forfeited, the share capital account is Debited. The liability of a shareholder debited. Shut up. The liability of a shareholder in joint stock company is limited. The share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association is called nominal capital. Nominal या authorized, it is one and the same. Okay, upper limit. Unpaid amount of allotment and calls may be transferred to calls in arrears. There must be a provision in dash for forfeiture of shares. Now, article. What are articles? Internal rules, memorandum of association, articles of association. दो documents. Starting में बताया था. Memorandum बाहर वालों के use के लिए, articles internal use के लिए. So articles of association. The answer is articles of association. Internal rules of the company. Give one word. Amount called upon shares by the company but not received. Calls in arrears. Issue of share at its face value. Issue at par. The person who purchases the shares of a company. Shareholder. पीछे दिया है आंसर, खाली चेक करते जाओ राइट है कि रॉन्ग। Shareholder. The form of business organization where huge amount of capital can be raised. Joint stock company या public limited company. Joint stock company या public limited company. The capital which is subscribed by the public. Subscribed capital. The shares having preferential right at the time of winding up of the company. ना Preference share. उसमें हाँ ठीक है, बराबर है, इसमें तो लिख सकते हो। Preference shares बराबर है। The shares having preferential right at the time of winding up of the company, preference shares. The shares on which dividend is not fixed, equity shares. The part of subscribed capital which is not yet called up by the company, uncalled capital. सब क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? साव चिल्ली टू। ट्रू और फॉल्स। रीजन लिखना है, पेंसिल से रीजन लिखो सब लोग। डायरेक्टर्स कैन फोरफीट द शेयर्स फॉर एनी रीजन। सब पैसा भरा है तो भी फोरफीट कर लोगे? लिखो उधर फॉल्स। Directors can forfeit shares only for non-payment of allotment/calls. Okay, directors can forfeit the shares only for non-payment of allotment/calls. Then, once the application money is received, directors can immediately proceed for allotment of shares. False. Once the application is received, directors cannot immediately go for allotment. बीच में क्या होता है? Excess. तो excess should be adjusted in allotment/refunded. Excess should be adjusted
in allotment / refunded, and only after that they can proceed for allotment. Only after that they can proceed for allotment. Then, समझा ये? Next, joint stock company form of business organization came into existence after industrial revolution. True. Why? Need of large capital due to technology revolution. Yes. Due to, हाँ, reason दोनों में लिखने का. क्यों जॉइंट स्टॉक कंपनी बना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद? क्योंकि पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ी. क्यों पैसों की ज्यादा? टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन. पढ़ा है ना स्टीम इंजन, स्टीफनसन. स्कूल में था कि नहीं था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1650? चलो, ignorance is bliss. Need of large capital due to technological revolution. Then equity shareholders get guaranteed rate of dividend every year. क्या लिखोगे? Who gets? Preference shares have fixed dividend. Preference shares have, बोल रहा हूँ अभी. Preference shares have fixed rate of dividend. Rate of dividend on equity shares keeps on fluctuating. इतना लिख सकते हो. Preference shares have fixed rate of dividend. Equity share, the dividend keeps fluctuating. Equity share dividend keeps fluctuating. Face value of shares and market value of share is always same. False. Market value of share keeps changing due to demand and supply. Market value keeps changing due to demand and supply. Sweat shares are issued to public. False. Sweat shares याद है आपको? बताया था किसको दिया जाता है? Directors for their valuable services. Directors पसीने की कमाई. Directors for that valuable. मुकेश अंबानी है ना, उसने कोई बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, एम्प्लॉय को अच्छा मोटिवेट किया, अच्छे से समझाया कैसे बिजनेस करने का, नॉलेज दिया. उसके लिए कंपनी उसको कभी पगार तो देता ही है, सैलरी मिलती ही है. सैलरी के जगह पे इट कैन गिव शेयर्स ऑल्सो. सैलरी के जगह पे इट कैन गिव शेयर्स. मुकेश अंबानी के जैसा किसी भी डायरेक्टर. सो मेनली गिवन टू डायरेक्टर्स फॉर देयर वैल्यूएबल सर्विसेज. स्वेट शेयर्स आर गिवन. हाँ, सस्ता पड़ता है. स्वेट शेयर्स आर गिवन to directors for services. Sweat shares are given to directors for their valuable services. Next one, yeah. Employee को stock option मिलता है. ESOP बोलते हैं उसको, ESOP. Employee do not get sweat shares, they get stock option. आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, याद है? सस्ते भाव पे शेयर दिया जाता है उसको. क्या दिया जाता है? सस्ते भाव पे. तो उसको भी जोश है कि मैं भी ओनर हूं, मैं भी शेयर होल्डर हूं, मैं भी ज्यादा काम करूंगा, कंपनी प्रॉफिट करेगी, मेरे को भी प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा. सो ESOPs आर गिवन टू एम्प्लॉइज. नेक्स्ट, उस पे है ना ESOP पे रेस्ट्रिक्शन रहता है. आप सपोज एम्प्लॉय हो ना, आपको मैंने लॉक इन रहता है 2 साल 3 साल, उसके बाद आप बेच सकते हो. ओके, बट अच्छा ही रहता है वो एम्प्लॉय के लिए. आपको काफी सस्ते प्राइस में शेयर्स मिल जाते हैं, और फिर जब चाहे आप मार्केट में अच्छा प्राइस 2-3 साल के बाद हो गया, आप बेच सकते हो. काफी सारे एम्प्लॉय के शेयर्स ऐसे 50-100 गुना हो गए हैं. कंपनी बंद हो गई तो वो अमाउंट वापस मिलता है? नहीं, जो लिमिटेड लायबिलिटी है ना, जो पैसा गया वो शेयर का फेस वैल्यू प्रीमियम सब गया. इक्विटी शेयर होल्डर आर द लास्ट वन टू पे. वी डू नॉट गेट पेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन यूजुअली. True, agree or disagree? In case of pro rata allotment, the excess application money received must be refunded. Disagree. किधर जाता है? Allotment. Call in advance account is shown on the asset side of balance sheet. Disagree. Why? Liability है. What is asset? Call in arrear. Authorized capital is also known as nominal capital. Agree. Paid up capital can be more than called up capital. Disagree. पेड अप ज्यादा हो सकता है कॉल्ड अप से?
कम हो सकता है कॉल इन अरियर की वजह से. जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. अग्री, इसलिए तो बनाया जाता है. When shares are forfeited, share capital is account is credited, debited. Directors can reissue forfeited shares. When the issue price of share is 12 rupees, face value is 10, the share is said to be issued at premium. Public limited company can issue its shares without issuing its prospectus. Disagree. Shares can be issued for consideration other than cash. Shares can be issued for consideration other than, मतलब कैश के अलावा भी दूसरे एसेट के लिए आप शेयर्स इश्यू कर सकते हैं. इसको बोलते हैं सीओटीसी, कंसिडरेशन अदर देन कैश. अग्री. वन सेंटेंस. व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट in payment of dividend and liquidation. Shares having preferential right in payment of dividend and liquidation. इसका मतलब समझा? मतलब क्या? डिविडेंड में पहले किसको जाता है? प्रेफरेंस को, और बाद में इक्विटी को. व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल? रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल, अपर limit of capital beyond which we cannot issue the shares. Upper limit of capital beyond which we cannot issue the shares. Beyond which we cannot issue the shares. ये जो तीसरा वाला है ना, बहुत सारे स्टार मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिजर्व कैपिटल पूछा हुआ है, बोर्ड का फेवरेट है, 2 बार पूछ लिया है. रिजर्व कैपिटल, जब इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो सुनने का. रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर 2 different things. What is capital reserve? आपका प्रॉफिट्स, जो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व डालते हो, दे आर योर प्रॉफिट्स, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व. व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल इज दैट अनकॉल्ड मनी ऑफ शेयर्स which is called up at the time of liquidation. लिखो, रिजर्व कैपिटल मीन्स दैट अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर्स which is called up at the time of liquidation. Reserve capital is that uncalled money on shares which is called up at the time of liquidation. मतलब क्या? आपका शेयर 10 रुपए का है, बराबर. आपने 8 रुपया मंगवा लिया, 2 रुपया बाकी है फाइनल कॉल का. 2 रुपया वो मंगवाएगा ही नहीं, कंपनी जानबूझ के मंगवाएगा ही नहीं. कभी मंगवाएगा? लिक्विडेशन के वक्त, जब कंपनी बंद होने वाली है ना, और सपोज पैसे की जरूरत है बाहर वालों को चुकाने के लिए, तब आप मंगवाओगे, वरना मंगवाने की जरूरत नहीं. उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, रिजर्व रखा हुआ कैपिटल. दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल. एंड व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? प्रॉफिट. शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट, वन टाइम लमसम आया हुआ प्रॉफिट. क्या प्रेफरेंस शेयर जिनके पास रिटर्न को लिक्विडेशन पे पैसा मिलता है, पहले लोन्स को, फिर बचा तो प्रेफरेंस, और फिर बचा तो इक्विटी. अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जब भी कोई लिक्विडेशन में जाता है ना, तो लोन पर ही पैसा खत्म हो जाता है, लोन वाले को भी पूरा मिलता नहीं है. तो प्रेफरेंस और इक्विटी तो वो उनसे लेके लोन वालों को चुकाने का, राइट. उनसे लेके लोन वालों को चुकाने का, इक्विटी से लेके लोन चुकाना था. दैट इज व्हाट इज रिजर्व कैपिटल यूज्ड फॉर. गॉट इट? सर वैसे अगर सेकंड कॉल आपने बाद में लिक्विडेशन के वक्त मंगा दे, आफ्टर मे बी 2 years, तो 2 साल में बंद. अच्छा, सब लोग फिट कर दिया तो हाँ, नहीं, कॉल इन अरियर अलग चीज है भाई लोग. सुनो, कॉल इन अरियर मतलब क्या? आपने कॉल्ड अप है लेकिन वो भरा नहीं है, दैट इज कॉल इन अरियर. उसको तो ताबड़तोड़ फॉरफिट कर देने का. ये तो मंगवाएगा ही नहीं. 10 रुपए का मंगवाएगा तभी, अगर तभी नहीं भरा तो तभी फॉरफिट कर दो. फॉरफीचर का प्रोसेस तो सेम ही है. हड़प लो जो भरा था और वापरो उसको डिबेंचर को देने में. कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब, अनकॉल्ड का मतलब जो पैसा अभी तक भरा मंगवाया नहीं है, जो तक अभी तक मंगवाया नहीं है, वो फ्यूचर में मंगवाओगे. प्रोसेस इज सेम. उधर नहीं भरा तो वापस फॉरफिट, सेम. व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? Applied shares are more than issued shares. Applied are more than issued. Which account is debited when share first call money is received?
share first call money is received bank account. कोई भी call money received bank account is debited. When are shares allotted on pro rata basis? Oversubscribed. Over subscription and pro rata allotment. Over subscription and pro rata allotment. Pro rata मतलब proportionate allotment. Proportionate allotment. What is forfeiture of shares? Cancellation of shares. Cancellation of default shares. Defaulted या default shares. What is call in arrear? Unpaid. Unpaid money, unpaid calls, unpaid money on equity shares / preference shares. Unpaid call on shares. Unpaid call या unpaid money on shares. What do you mean by shares issued at premium? How will you define shares issued at premium? Higher than the face value. Higher than face value. What is paid up capital? Capital received. Called up minus calls in arrear. Paid up capital is called up capital minus calls in arrear. Actually paid by shareholder. Actually paid by shareholder. Paid up is called up minus calls in arrears. When face value of share is rupees 100 and issue price is 120, then it is said to be shares are issued at premium. Dash capital is the capital the company is authorized to issue by its memorandum of association. Authorized. The difference between called up capital and paid up capital is known as call in arrear. Dash shareholder get fixed rate of dividend. Preference. Dash shareholder real owners of the company. Equity. Dash form of business organization in which capital is raised through the issue of shares. Joint stock, yeah, public limited. Then dash capital is a part of issued capital which is subscribed by the public. Paid up capital. Subscribed by the public. Subscribe. And then the part of authorized capital not issued to the public. Unissued. Yes, बोलो. ये solve करके लाना है next lecture तक. I'll check it in the next lecture. Okay? चलो. हाँ बोलो. Sorry. हाँ.